بالآخر ٹھکرانی نے بڑی نرمی سے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور جیسے خود سے بولی، بہت ہٹیلے بالک ہو راجکمار جی۔ پھر اس نے بڑی نزاکت سے بچے کو حمیدہ کی گود میں لٹا دیا۔ پھر وہ عجیب سی نظروں سے بچے کو دیکھنے لگی۔ حمیدہ کی گود کا لمس پاتے ہی بچے کے ننھے سے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس کی ادھ کھلی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں، کمزوری کے ساتھ صحیح، مگر اس کے ننھے منھے ہاتھ مچلے اور حمیدہ کے سینے کو چھونے لگے۔ حمیدہ کا دل پھٹنے لگا۔ بچہ صاف صاف دودھ مانگ رہا تھا اس سے، مگر وہ حکم کی منتظر تھی۔ معاملے کی نزاکت اور راجپوتوں کی آن دونوں کو سمجھتی تھی۔ بغیر حکم کے وہ دودھ کیسے پلاتی؟ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ ٹھاکرانی نے بھی بچے کا کیمیاوی رد عمل دیکھا۔ ایک دم سے رقابت کی آگ بھڑک اٹھی، مگر اس لمحے اسے حمیدہ سے نفرت، شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور اس نفرت کو اظہار کی ضرورت بھی تھی، ورنہ ٹھاکرانی کو کچھ ہو جاتا۔ چنانچہ اس نفرت کو کسی اور طریقے سے نکالا۔ میں نے بچے کو تیری گود میں اس کا منہ دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ حمیدہ، دودھ کیوں نہیں پلاتی اسے؟ حمیدہ اس کی منتظر تھی، نفرت سے صحیح، مگر حکم تو ہوا۔ اس جنگ میں ماں کو ہی جیتنا تھا، اور وہ جیت گئی۔ ٹھاکرانی رنجیتا جو کر نہیں سکتی تھی اسے محسوس تو کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس وقت وہ ٹھاکرانی نہ رہی، حمیدہ بن گئی۔ اب وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور وہ محبت ہی محبت تھی، مامتا ہی مامتا۔ رقابت کی آگ سرد پڑ گئی۔ خود سے بھی کوئی رقابت کرتا ہے؟ ننھا ٹھاکر بے سدھ ہو کر سو گیا۔ پیٹ بھرنے کی لذت اسے پہلی بار ملی تھی۔ سکون صرف ننھے بچے کو نہیں ہوا تھا، سکون تو شاید اس کمرے میں منہ کی طرح برس رہا تھا۔ وہاں موجود دونوں عورتیں بھی شرابور ہو گئی تھیں۔ ٹھاکرانی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس پر کیا گزرتی رہی ہے۔ نیند اور آرام کجا، وہ تو سکون کو بھی ترستی رہی تھی۔ اتنے برسوں کے بعد خزاں میں کھلنے والا پھول کھلنے سے پہلے مرجھا جانے کے خطرے سے دوچار تھا۔ اس کا بچہ اب تک صحیح معنوں میں سویا بھی نہیں تھا، اس کی تو جان سولی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ دودھ پیتے بچے کو دیکھتی، اس کی مسرت بھری آوازیں سنتی رہی تھی۔ وہ دید اس کی آنکھوں میں، وہ آوازیں اس کی سماعت میں بس گئی تھیں۔ خاصی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ بچے کی آواز معدوم ہو گئی ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بچہ دودھ پیتے پیتے سو گیا ہے، اس کے ہونٹ اب ہل نہیں رہے۔ اس نے بڑی نرمی، بڑی آہستگی سے بچے کو حمیدہ کی گود سے اٹھایا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بچہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ کسمسایا تک نہیں۔ پہلی بار ٹھاکرانی نے سکون کی سانس لی۔ اس کا بچہ زندہ رہے گا، اس کا پیٹ بھر گیا ہے اور وہ سو رہا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی اپنی آنکھیں بھی منڈنے لگیں۔ ادھر حمیدہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جسم بے جان ہو گیا ہے، ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ ٹھاکرنی کی مسہری پر بیٹھی ہے، اور یہ بے ادبی ہے۔ ٹھاکرانی کو جلال آ گیا تو خیر نہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ٹھاکرانی کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ جیسے تیسے وہ مسہری سے اتری، چٹخنی گرا دی۔ مالکن، اس نے ٹھاکرانی سے پوچھا۔ ٹھاکرانی نے بڑی مشکل سے اسبات میں سر ہلایا اور نیند کی آواز میں بولی، کھول دے حمیدہ، اور یہ کہتے ہی وہ سو گئی۔ حمیدہ نے چٹخنی گرائی، پھر وہ آ کر فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ دودھ کا مسئلہ ٹھاکر کے لیے بڑی الجھن بن گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کا احسان لیا تھا، اور اب وہ اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ اتنا تو اس کی سمجھ میں آتا تھا کہ احسان کا صلہ دینا ہے، مگر کتنا اور کیسے، یہ اندازہ وہ کیسے کرتا؟
राजपूतों के यहाँ बच्चे को किसी और से दूध पिलवाने की कोई रिवायत नहीं थी, बल्कि उनके नजदीक तो ये बहुत बड़ी बुराई ही होती। ये तो खून की ताकत को कम करने की बात थी। ताहम ठाकुर ये समझता था कि दूध अनमोल शय है, उसका कोई मोल नहीं, उसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती, मगर फिर भी कुछ करना तो था। वो इस मामले को रवायत की रोशनी में देखना और समझना चाहता था। ठाकरानी अपने बच्चे के मामूलात तय कर चुकी थी। ठाकुर चंद रोज बहुत मसरूफ रहा। वो चाहता था कि रंजीता से बात करने से पहले कुछ जरूरी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ले। कचहरी के काम लंबे होते हैं, ठाकुर की बड़ी बात थी, मगर रस्मी कार्रवाई भी वक्त तो लगता है। कागजात मुकम्मल हो गए तो उस रात उसने ठाकरानी को अपने कमरे में बुला लिया। ठाकुर चंद लम्हे सोचता रहा कि बात कहाँ से शुरू करे, किस तरह करे। बिलाखिर उसने कहा, ये दूध वाला जो मामला है हमारे लिए तो बिल्कुल नया और अनोखा है। हमें तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, मगर जानना भी जरूरी है। ठाकरानी मुंह से कुछ न बोली, बस मुस्तफसराना निगाहों से उसे देखती रही। तुम जानती हो कि राजपूतों को अपकार रास नहीं, सर का झुकना कबूल नहीं होता हमें, और एहसान सर झुका देता है। राजपूत के लिए सर झुकाना मौत के बराबर है। पर जीवन भी अजीब चीज है। मनुष्य कितना ही ताकतवर हो, भगवान की इच्छा के आगे बेबस होता है। मनुष्य का मनुष्य से काम निकलता है, पर राजपूत तो किसी से कुछ नहीं लेता, जीवन भी नहीं। लेना पड़ जाए तो उसका बढ़ चढ़ कर बदला देता है, ताकि सर थोड़ा सा उठाने की गुंजाइश निकल आए। बस ये राजपूत की आन की बात है, वरना सर किसी के आगे झुक जाए तो कभी नहीं उठता। तुम समझ रही हो ना रंजीता? ठाकरानी रंजीता खूब समझ रही थी। उसकी रगों में भी तो राजपूत खून था। जी नाथ, हमारा यही हाल है। हम पर किसी ने अपकार किया है, छोटा मोटा नहीं, जीवन जैसी चीज दान करने का उपकार, और वो भी हमारे उस पूत के लिए जो बरसों से हमारा सपना था और लगता था पूरा कभी नहीं होगा। अब अवतार सिंह के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना रंजीता? अवश्य कर सकते हैं नाथ। मैं इस पर सोचता रहा हूं ठाकरानी। मैंने उसके लिए जानकारी भी की है। मुसलमानों में ऐसे दूध पिलवाया जाता है, उसकी उजरत भी दी जाती है। हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक उजरत देता है, मगर दूध पिलाने का एहसान अपनी जगह रहता है। तो रंजीता, हम जमालदीन और हमीदा के सामने सर कभी नहीं उठा सकते। हमें उनको अपने बराबर का मकाम देना है। वो क्या है नाथ? हम उन्हें दूध की उजरत देंगे, इतनी कि वो हमारी रैयत नहीं रहेंगे, हमारे बराबर के हो जाएंगे। ठाकरानी की समझ में कुछ नहीं आया। वो बोली, मैं मतलब नहीं समझी नाथ। मैं अपनी सारी जमीन, जायदाद, नकदी, जेवरात सब आज से कुछ ज्यादा जमालदीन के नाम कर रहा हूं। ये उनका हक भी है, फिर उनके सामने हमें कोई बड़ाई का एहसास भी नहीं होगा। ठाकुर बहुत गौर से उसे देख रहा था। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं रंजीता? उसने बहुत नरम लहजे में पूछा। ये कैसी बात की है नाथ? मेरे लिए तो आपके चरणों की धूल ही बहुत है। रहे छोटे ठाकुर तो उनकी फिक्र आपको मुझसे ज्यादा होगी, और ये तो मैं जानती हूँ कि भगवान का दिया इतना है कि मेरे छोटे ठाकुर की नस्लों के लिए काफी है।
ठाकुर ने उसे गले से लगा लिया। तुम बहुत अच्छी पत्नी हो रंजू। ये बताएं, आपने कागजात बनवा लिए? ठाकुरानी ने अचानक कहा। हाँ, और नकदी और जेवरात तो घर की बात है। ठाकुरानी सोच में पड़ गई। ठाकुर उसे गौर से देख रहा था। चंद लम्हे बाद ठाकुरानी ने सर उठाया और दबे दबे लहजे में बोली, अभी आपने ये सब कुछ इन्हें दिया तो नहीं? नहीं, ठाकुर ने कहा, पर ये तो बताओ बात क्या है? देखिए, अभी ये सब कुछ करेंगे तो सबको खोज होगी कि ये किस बात का इनाम है। बहुत लोग समझ भी जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर ने भी एक लम्हे सोचा। तुम अकल वाली हो रंजू, बात तो ठीक है, पर मैं अब ये काम करके रहूंगा। आप करेंगे तो ठीक ही होगा, ठाकुरानी ने बुझे बुझे लहजे में कहा। तुम फिक्र न करो, मैं जमालदीन से कह दूंगा कि 3-4 साल तक किसी को पता न चले। अपनी बड़ाई कोई नहीं छुपाता नाथ। मैं आदमी को पहचानता हूँ रंजू। जमालदीन तो शायद ये बात कभी भी किसी को नहीं बताएगा। वो ये सब कुछ आसानी से लेगा भी नहीं। ठीक है नाथ, मेरे लिए कोई और हुक्म? हुक्म नहीं, विनती है। तुम हमीदा को भी खुद से कम न समझना। हमेशा उसकी इज्जत करना और अपने बेटे को भी यही कुछ सिखाना। हमीदा उसके लिए माता समान है और विशालदीन भाई जैसा है। ऐसा ही होगा स्वामी जी। ठाकुर का ये दावा गलत नहीं था कि उसे आदमी की पहचान है। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था तो ठाकुर जमालदीन के घर में बैठा था। उसके कहने पर जमालदीन ने हमीदा को बुलाया। हमीदा आई तो ठाकुर ने नकदी और जेवरात की गठड़ी उसके कदमों में डाल दी। हमीदा तो गुम खोकर रह गई। जमालदीन ने घबरा कर पूछा, ये क्या है ठाकुर जी? खोल कर देखो, ये सब हमीदा का है। हमीदा बुत बनी बैठी थी। जमालदीन नीचे बैठा और उसने कांपते हाथों से गठरी खोली। गठरी खुली तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब? जमालदीन ने घुटी घुटी आवाज में कहा। हमीदा अब भी चुप थी। ये उस दूध का हक है जो हमीदा ने मेरे बच्चे को पिलाया है, ठाकुर ने कहा। ठाकुर जी, मैंने आपके कहने पर नहीं, आपने दिल के कहने पर दूध पिलाया है छोटे ठाकुर को। मैं तो तड़प रही थी, मर रही थी उसके लिए। आपने तो इजाजत देकर एहसान किया है मुझ पर और मैं उसका सिला नहीं ले सकती, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं लूंगी, हमीदा ने कहा। मगर उसका सिला तो तुम्हारे रिवाज के मुताबिक तुम्हारा हक है। ये वैसी बात नहीं मालिक, मैं सच कहती हूँ कि अगर छोटे ठाकुर को दूध न पिलाती तो शायद मर जाती। गैर औरत की ये अपनायत बल्कि मोहब्बत भरी बात सुनकर ठाकुर को कुछ हो गया। उसके दिल में इस गैर औरत के लिए अजीब तरह की मोहब्बत फूटी। तो हमीदा, मेरे बच्चे से कोई नाता तो है ना तुम्हारा? कोई किसी के लिए यूं नहीं तड़पता, यूं नहीं मरता। अब मैं तुमसे कहता हूँ हमीदा कि आज से तुम मेरी बहन हो और बहन होने का हक तुम पहले ही अदा कर चुकी। ये क्या कह रहे हैं मालिक? अब मुझे कभी मालिक ना कहना, मैं भाई हूं तुम्हारा। हम ठाकुर कभी किसी से रिश्ता नहीं जोड़ते, जोड़ लें तो जीवन भर निभाते हैं। हम इस काबिल नहीं मालिक। अब के जमालदीन हाथ जोड़ के गड़गड़ाया। अब तुम क्या चाहते हो? ये कि मैं अपने हाथों से अपना गला काट लूं? ठाकुर गुर्राया। जमालदीन थर थर कांपने लगा। हमीदा सर झुकाकर बोली, ठीक है वीर जी, पर ये बोझ हम नहीं उठा सकते। उसने गठड़ी की तरफ इशारा किया। ये तो अब तुम्हारा है, ठाकुर प्रताप सिंह की बहन का हिस्सा, और इसके अलावा बहुत कुछ है। ठाकुर ने जेब से कागजात निकालकर जेवरात पर रख दिए। ये जमीन के कागजात हैं। हमीदा रोने लगी। इन्हें कैसे मान लूं? तो भाई की अर्थी उठने पर मानोगी?
ठाकुर ने कड़े लहजे में कहा। जमालदीन का चेहरा फक हो गया। चलो हमीदा, उठाओ इसे, अब कोई बात ना करना। उसने हमीदा को डांटा। फिर वो ठाकुर की तरफ मुड़ा। अब कोई बुरी बात मुंह से ना निकालना मालिक, हम जानिसार लोग हैं, ये सब नहीं सुन सकते। तुम भी आइंदा मुझे मालिक न कहना, ठाकुर ने जमालदीन से कहा। तो क्या तुम कौन हो मेरे? मैं आपका वफादार गुलाम हूँ। नहीं, हमीदा बहन के रिश्ते से अब तुम मेरे जीजा। तो मैं क्या कहूँ मालिक? ठाकुर ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, बस ठाकुर जी कह लेना, इससे आगे कुछ नहीं। ठीक है ठाकुर जी, अब मैं चलता हूँ, ठाकुर ने कहा। मगर दरवाजे पर पहुंचकर वो मुड़ा। सुनो, इस रिश्ते से मेरे घर, मेरे पूरे परिवार पर तुम्हारा अधिकार है, ये बात कभी न भूलना। और मेरे घर में कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा। ये ठाकुर प्रताप सिंह की जुबान है। फिर वो घर से निकल गया। वो तीसरा साल था कि ठाकुर की फसलों की आमदनी में जमालदीन का हिस्सा लेकर उसके घर आया। उसने रकम की पोटली जमालदीन को देते हुए कहा, तुम कब तक अपने हिस्से का काम मुझसे कराते रहोगे जमालदीन? अब मुझे हल्का कर दो। जमालदीन के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो पोटली हाथ में लिए नजरें झुकाए बैठा रहा। तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। भाई, अपनी जमीनों का इंतजाम आप संभालो ना। मुझे ये सब कुछ आता ही नहीं ठाकुर जी, जमालदीन ने दबी आवाज में कहा। चलो ठीक है, मगर ये तो बताओ, इस पैसे का क्या करते हो? कुछ भी नहीं, संदूक में रख देता हूँ ठाकुर जी। अब ये ना कहना कि तुम्हें पैसा खर्च करना भी नहीं आता। सच है ठाकुर जी, मुझे ये भी नहीं आता। ये कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा सा मकान बनवाओ, माल मवेशी खरीदो, मेरी बहन के लिए जेवर गहना बनवाओ। अब तुम्हारे पास कमी तो नहीं है? नहीं ठाकुर जी, अब तो ज्यादती है जी। मकान की जरूरत नहीं, ये मकान काफी है हमारे लिए। अब्बा के साथ यहाँ बरसों रहा, ये अब्बा की निशानी है। तो जमीन की कमी नहीं तुम्हारे पास, किसी दूसरी जगह मकान बनवा लो। हम यहाँ खुश हैं ठाकुर जी। तो दूसरा मकान किसके लिए बनवाऊं? और माल मवेशी रखूं तो अकेली जान कैसे देखभाल करूंगा उनकी? नौकर मुलाजिम रख लेना। नहीं ठाकुर जी, मैं तो खुद नौकर हूँ। ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं, और हमीदा को जेवर से दिलचस्पी नहीं। ठाकुर को हैरत हुई। कोई दूसरा होता तो अब तक ठाकुर के मुकाबले में खड़ा हो चुका होता। उसने ये बात जमालदीन से कह दी। मैं आपके साए में रहना चाहता हूँ ठाकुर जी, मुझे बड़ा नहीं बनना। जैसा मुझे रब ने बनाया है मैं वैसा ही अच्छा हूँ। जमालदीन ने कहा, जो जमीन आपने मेरे अब्बा को दी थी वो हमारी जरूरत के लिए बहुत काफी है। बाकी सब कुछ तो मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए रखा है, वरना इसकी जरूरत नहीं थी। इतना मानता है, मुझे ठाकुर ने उसे बहुत गौर से देखा। इतना मानता हूँ ठाकुर जी कि बता नहीं सकता। जमालदीन ने कहा, आपके हुक्म पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जान भी हाजिर है। ठाकुर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा मैं कहूँ नमाज छोड़ दो तो नमाज छोड़ देगा? नहीं ठाकुर जी, नहीं छोड़ूंगा। तो फिर क्या मानता है मुझे? हर एक का अपना मुकाम है ठाकुर जी। अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है, उसके हुक्म पर तो आदमी दूसरों को मानता है। उनमें से हर एक का मकाम समझता है। जैसे आपके मुकाबले में मैं किसी और की बात नहीं मानूंगा, वैसे ही अल्लाह के मुकाबले में मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ठाकुर के तजस्सुस की कोई हद नहीं। उसने जमालदीन को हमेशा वफादारी, आजिजी और फर्मा बरदारी में लिपटा देखा था। ये पहला मौका था कि वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, और उसने साफ इनकार किया था। ये क्या बात हुई जमालदीन?
اللہ سب سے بڑا ہے ٹھاکر جی، سب کچھ اسی کے حکم سے ہے، اور یہ اپنا حکم نہ ماننے کی سزا میں تجھے یہاں سے نکلوا دوں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا ٹھاکر جی۔ جمال الدین نے ٹھاکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اور جو تیرے اپنے گاؤں میں زمین تیرے باپ پر تنگ ہوئی تھی تو کس نے اسے سہارا دیا تھا؟ آپ نے۔ تو تجھے اللہ کے مقابلے میں میرا حکم نہیں ماننا چاہیے؟ ٹھاکر نے بے حدر رسان سے کہا۔ نہیں ٹھاکر جی، آپ کو اللہ نے ہمارا وسیلہ بنایا تھا، آپ کے دل میں ہماری مدد کا خیال اللہ نے ڈالا تھا، ہمیں تو پہلے اللہ کا حکم ماننا ہے، اور میں تجھے یہاں سے نکال دوں تو تم لوگ بھوکے نہیں مر جاؤ گے؟ نہیں سرکار، اللہ رزق دینے والا ہے، تجھے یہ یقین کیسے ہے؟ اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ٹھاکر جی، اور دیکھ لیں کہیں کال پڑ جائے تو لوگ بھوک سے مرتے ہیں، یہ اللہ کا قہر ہے، ورنہ کہیں بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے، مرنا ہے تو مرنا ہے، یہ تو ایمان ہے ہمارا ٹھاکر جی۔ ٹھاکر بہت حیران تھا، اس نے دیکھا تھا کہ راجپوت آن کی خاطر بھگوان سے بھی انکار کر دیتے ہیں، اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ذرا سے قاعدے کے لیے بھگوان کے حکم کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ جمال الدین کس مٹی کا بنا ہے؟ پہلی بار اس کے دل کی گہرائیوں میں مسلمان کی عزت پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، ارے یہ تو ہم سے بڑھ کر رسول کے پکے ہیں۔ چھوڑ ان باتوں کو جمال الدین، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو یوں تجھے آزما رہا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو اچھی طرح رہے، اب پیسے کی تو کمی نہیں ہے تجھے، تو بڑا ذمہ دار ہے، تجھے شان سے رہنا چاہیے۔ ساری شان اس رب کی ہے ٹھاکر جی، جمال الدین نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، میرے لیے تو اوپر وہ ہے اور نیچے آپ ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں جمال الدین، ٹھاکر اٹھ کھڑا ہوا۔ جمال الدین کی اس ملاقات اور گفتگو نے ٹھاکر پرتاپ سنگھ پر بہت گہرا اور انمٹ نقش چھوڑا تھا۔ اس رات وہ دیر تک اس سلسلے میں سوچتا اور غور کرتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ بچپن ہی سے اس نے مسلمانوں کے لیے لفظ ملیچ سنا تھا، ہندو ان کا ذکر حقارت سے کرتے تھے، اب ملیچ کا مطلب ہی گندا ہے، تو ٹھاکر پرتاپ سنگھ اس سوچ کے ساتھ بڑا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب چھوٹے کے دودھ کا مسئلہ سامنے آیا تو ٹھاکر پرتاپ سنگھ آگ بگولا ہو گیا۔ اس کا بیٹا ایک مسلمان عورت کا دودھ پی کر اس کے خالص خون میں ملاوٹ کرے، یہ وہ کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ مگر وہ بچہ اس کے لیے زندگی، آن، دھرم، ہر چیز سے بڑھ کر تھا، چنانچہ اسے بچے کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ اوتار سنگھ کی پیدائش سے پہلے اسے اور ٹھاکرانی کو خواب میں بیک وقت بشارت دینے والا بھی مسلمان تھا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ بشارت سچی تھی۔ پھر اس کی پیدائش والے دن جو مجذوب آیا وہ بھی مسلمان تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے خواب میں اسی مسلمان بزرگ کو دیکھا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ وہ اس بات پر غور کرتا تھا کہ اس کے خون میں ملاوٹ آخر کس قسم کی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اس کے بیٹے میں کیسی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے پاس مسلمانوں کے بس دو ہی حوالے تھے، ایک اپنے پرانے کلاس فیلو امان اللہ کا اور دوسرا مہر دین اور اس کے گھرانے کا۔ سب سے پہلے تو ٹھاکر پرتاپ سنگھ کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ مسلمان ہرگز گندے نہیں ہوتے، اس لیے انہیں ملیش کہہ کر پکارنا غلط ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہندوؤں سے کہیں زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ہر نماز سے پہلے یعنی دن میں کئی مرتبہ تو وہ آدھا اشنان کرتے ہیں، اس کے بغیر تو وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔
फिर अपनी आदत में भी वो पाकीज़ा होते हैं, और ये खुली हुई बात थी। वो अपना और जमालुद्दीन का मुआवजा कर रहा था, और मुआवजा करने के लिए आईना देखना जरूरी है। ठाकर को खुद को भी समझना था। पहले ही मरहले में उसे ये इतराफ करना पड़ा कि मुसलमानों के लिए उसकी नापसंदीदगी की कोई ठोस और माकूल वजह नहीं थी, बल्कि उसका सबब नस्ल दर नस्ल विरसे में मिलने वाला तासुब था, और वो खुद कोई अच्छा हिंदू नहीं था। उसके ख्याल में ये देवी देवता सब फरसूदा बातें थी। उसने जिंदगी में कभी पूजा नहीं की थी, मगर जब उसे बेटे की आरज़ू हुई और वो पूरी होती नजर नहीं आई तो वो मंदिरों में गया, पूजा की, चढ़ावे दिए, दरख्तों तक से औलाद मांगी। उसने ये सब कुछ किया तो अपनी गरज, अपने मतलब से। उस वक्त अगर कोई उससे कह देता कि अपने गांव में मंदिर गिरा देने से, कोई मूर्ति तोड़ देने से उसकी मुराद पूरी हो सकती है, तो वो यकीनन ऐसा कर गुजरता। लेकिन वो उसके हिंदू होने के बावजूद इसके एहसान के हवाले से उसकी ऐसी इज्जत करता था, उसके लिए जान दे सकता था। उसने खुद कहा था कि वो अल्लाह के बाद उसे सबसे बड़ा मकाम देता है। उसे एक हिंदू को उसकी ताकत की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसके अल्लाह ने एहसान मानने का हुक्म दिया है। और वो मुनाफिक भी नहीं था कि घर बचाने के लिए नमाज छोड़ने की हामी भर लेता, बाद में चाहे छुपकर नमाज पढ़ता रहता। यानी वो बुज़दिल नहीं था, बहादुर था। कमजोर होने के बावजूद ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर इनकार करता था। और एक बहुत बड़ी खूबी जमालुद्दीन का ईमान था। अल्लाह रिज़्क़ देगा, सब कुछ उसी के हुक्म से है, उसका हुक्म होगा तो वो मर जाएगा। जिंदगी बचाने के लिए उसके हुक्म के खिलाफ करने से कुछ फायदा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि अब जमालुद्दीन के पास ठाकुर से ज्यादा जमीन थी, ज्यादा पैसा था। उसकी जगह कोई और होता तो ठाकुर की निकालने की धमकी सुनकर कहता, तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं मालिक हूं इस जमीन का, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। लेकिन जमालुद्दीन ने उसके निकालने का हक तस्लीम किया था। उसने अपना नाता अल्लाह से ही जोड़ा। और वो कैसा आदमी है कि इतनी जमीन, इतने पैसे का मालिक होने के बावजूद अपने हाल में मस्त है। उसने किसी से भी नहीं कहा कि अब मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार हूं, इसमें बड़ाई नहीं, आजिज़ी ही आजिज़ी है। और उसने आखिर में कैसे कहा कि मेरे लिए तो ऊपर अल्लाह है और यहाँ आप हैं ठाकुर जी। इस आजिज़ी के सामने ठाकुर का सर झुक गया। उसने दिल में तस्लीम कर लिया कि जमालुद्दीन उससे बड़ा आदमी है, उसमें राजपूतों से ज्यादा खूबियां हैं। पहली बार उसे ये इत्मीनान हुआ कि हमीदा के दूध ने उसके बेटे को और बेहतर इंसान बनाया होगा, और ये कि विसालुद्दीन के साथ खेलकर उसे खूबियां ही मिलेगी, खराबियां नहीं। उस रात ठाकुर प्रताप सिंह सोया तो उसकी शख्सियत में एक बहुत बड़ा इनकलाब रूनुमा हो चुका था। ठाकुरानी रंजीता इन दिनों बहुत परेशान थी, परेशान भी और खौफज़दा भी। उसे खौफ था। अवतार सिंह 3.5 साल का हो चुका था। ठाकुर पढ़ा लिखा आदमी था। ये तय था कि वो उसे अपने बेटे को तालीम दिलाना है, और गांव में कोई स्कूल था भी नहीं, तो तालीम के लिए छोटे को घर से दूर जाना होगा। अभी तक तो ठाकुर ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन ठाकुरानी जानती थी कि उसके सर पर जुदाई की तलवार लटक रही है। ये ख्याल ही उसके लिए तड़पा देने वाला था